So yes, wish you a happy good morning to all, and also wishing you a happy Rojo for all. I hope you will enjoy the swing and also enjoy the Corona, also enjoy the rain, the monsoon. Okay, but don't get wet in rain, otherwise you will be taken to the COVID hospital. If any kind of symptoms are found within you, like cough, fever, or any type of, then you will be taken to COVID hospital. So घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और घर में ही कुछ हो जो क्या कहते हैं मिठाई विठाई बनाओ, है कि नहीं? केक वेक पीठा वीठा। और अगर तुम्हारा दिल चाहे कि सेलिब्रेट करने के लिए तो सर को बुलाओ और पीठा मीठा खिलाओ। ओके। हाँ, शुभ्रांशु सर बैक आ गए, मतलब आ गए हैं। वो गए थे 2-3 दिन के लिए घर। शायद वो आज से कंटिन्यू करेंगे। वो आएंगे, हम चले जाएंगे। वो आएगा, हम चले साथ में लंच करके जाएंगे। तो चलो, तो लेट्स स्टार्ट द टुडेस सेशन। आई हैव टोल्ड यू जस्ट after 10 days we will class the real spoken English class, and I have given the glimpse in yesterday's class. Okay, and yesterday I have discussed about how to introduce yourself. I have told more than 1 and 30 minutes, and clear each and every aspect of spoken, like how to introduce yourself, or even someone asked you that, sir, tell me something about yourself. So you can start from name to your finally the end also, that I am particular your name, then that's all about me, thank you. तो यहाँ से यहाँ तक मैंने बता दिया था तुम्हें, है कि नहीं? एंड आई होप सबने उस सबको भेजा होगा. आई थिंक नमिता हैज नॉट सेंट येट. सो नमिता काइंडली सेंट. और दोस्त जिन्होंने नहीं भेजा उनको भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसको खुद का इंट्रोडक्शन बनाइए. अगर बनाने में दिक्कत हो रहा है, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, देन वॉच द वीडियो. आई हैव आल्सो प्रोवाइडेड द लिंक इन ग्रुप. So don't be hesitate, or don't be shy, don't be hasty. Okay, work according to me, then everything things will be very easy for you. Okay, speaking English is a very very easy. Okay, like dime a dozen. So don't be neglected, don't be hesitated. So follow my guidelines, follow my requests. Okay. So let's start the today's class, and I have told you that from tomorrow. In yesterday, I have told you from tomorrow we'll learn the daily routine of our life. Okay, from सुबह उठने से, from getting up the bed to the go to the bed, है कि नहीं? बिस्तर से उठना और बिस्तर तक जाने के लिए. I have told you I will make you understand. I will make you learn more than 100 sentences about our daily routine. And here are the 10 sentences in front of you. The 10 sentences that I have written in the board. So you can at first you can write, or you can take that screenshot also, or otherwise you will write according to me when I discuss one and each point, one and every point. Okay, so choice is yours. कब तुम लिखना चाहो तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. Okay, so whenever we're talking about the daily routine of ourselves, जब कभी भी हम अपनी खुद की दिनचर्या की बात हम करते हैं, ठीक है? और whenever someone asks but ask कि sir tell me about your daily routine, तो भाई हाँ, मतलब 20 ज्यादा से ज्यादा 20, कभी तो 5 सेंटेंस में भी खत्म हो जाता है. मैंने उठा 6 बजे उठा, फिर उसके बाद काम मतलब नाश्ता वास्ता किया, ब्रश ब्रश किया, फिर उसके बाद में काम पे चला गया, स्कूल चला गया. फॉर एग्जाम्पल फॉर यू दैट आई वेंट टू स्कूल, देन ये वगैरह वगैरह, ये रिटर्न फ्रॉम स्कूल, देन ये वो फिर थोड़ा बहुत खाना खाया, रात को डिनर किया और सो गया. बस 5-6 लाइन में पूरा दिन खत्म. ओके, तो अगर इस तरह से होता, और अगर इस तरह से तुम पढ़ोगे, इतना तो सबको आता है तुम्हें, देन मैं यहाँ पे क्यों चिल्ला रहा हूँ? मतलब कुछ ज्यादा तुम्हें सिखाने की मुझे लत है, मुझे जरूरत है, या फिर मैं चाहता भी हूँ तुम्हें कि ज्यादा सीखो, कि ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ द डे, ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ द डे, हर एक्शन जो सुबह से लेकर शाम तक तुम करते हो, आई आई विल ट्राई टू कवर ऑल द एक्शंस फ्रॉम getting up from the bed to go to the bed.
अगर सुबह उठने से लेके बिस्तर तक जाने के लिए जो जो एक्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, ओके, आई विल ट्राई टू कवर ऑल द एक्शंस। एंड यहां तक देखो, यू कैन सी हियर दैट आई हैव रिटन 10 sentences एंड ये अब तक तुम सुबह बिस्तर से जस्ट ही निकले हो। 10 सेंटेंस में बोल दिया, अब तक तुम बिस्तर से जस्ट निकले हो। जस्ट द लास्ट सेंटेंस इज पुट ऑन और वेयर स्लीपर्स। ओके, चप्पल पहनना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब उठने के बाद, जो बाहर निकलने के बाद तुम, कभी कभी क्या होता है घर में भी इस ठंड के मौसम में स्लीपर पहनते हैं, है कि नहीं? और हम तो कभी नहीं पहनते भाई। और जो होते हैं जैसे मान लो जिनका मार्बल या टाइल का घर होता है, ठंड के मौसम में काफी घर का फ्लोर भी काफी ठंड हो जाता है, तो वो पहनते हैं, है कि नहीं? वो जो आता है ना, कुछ बिल्ली बिल्ली लगा के कुछ चप्पल आता है कि नहीं? कपड़े का देखे हो कि नहीं देखे हो? क्या फेमिलियर हो उससे? अगर नहीं हो तो सर्च करना गूगल गूगल में, या फिर फ्लिपकार्ट में जाकर सर्च करना स्लीपर फॉर रूम, आ जाएगा। यस। तो वहां तक ही पहुंचे हम, तो उसके बाद पानी पीना, बहुत से काम करना है बेटा, है कि नहीं? मैं इसको धीरे धीरे 3-4 दिन लगेगा, और धीरे धीरे इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ द डेली रूटीन। तो इससे बाद में 20-20 या फिर हो सकता है तो 30-30 सेंटेंस भी करवा दूंगा, बट जब ये करवाऊंगा तो यू हैव टू प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, जस्ट मैंने सिर्फ लिखा है सर गेट अप और वेक अप। तुम ये नहीं कहोगे कि सर आई गेट अप फ्रॉम द बेड और आई गेट अप एट 5 o'clock, ये सब नहीं बोलना है। मैं उसको क्वेश्चन करवाऊंगा, जा रही है तो क्या करवाऊंगा। लेकिन जो पिछले क्लासेस में करा चुका हूं मैं, कि जा रही है तो क्या करेंगे सर, अगर वो दिल, भाई ये तो सब क्या है, हमारा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है सर। उठते हैं हर दिन सुबह, ओके, दीज आर द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मेनली वी यूज द प्रेजेंट सिंपल। आई एम नॉट टेलिंग यू व्हाट यू डू इन प्रेजेंट सिंपल और नॉट, आई एम नॉट टीचिंग यू द ग्रामर। मैंने कहा था कि कोई भी चीज अगर हमारी जिंदगी से जुड़ा है तो वी सिंपली मतलब कनेक्ट द एक्शन विथ अस, लाइक दिस पर्टिकुलर एक्शन इज कनेक्टेड, इट इज द पार्ट ऑफ माय लाइफ, देन आई विल कनेक्ट द एक्शन विथ आई। ओके, आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास, उसको पकड़ो, इसको बीच में मतलब जोड़ दो, ओके, चिपका दो, कि उसके पीछे हमें कुछ नहीं लाना है। तो आई हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स इन प्रीवियस क्लासेस। सो आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट आवर डेली रूटीन, तो इफ ए पर्सन डजंट नो about his daily routine, that what a particular person is doing in his day, मतलब in full day, तो उसको भाई क्या आता है? अगर उसको खुद के बारे में नहीं पता है तो उसको क्या आता है? ठीक है, अगर जब हम खुद के चीजों को नहीं जानेंगे, खुद की चीजों को हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज टेलिंग यू दैट डिस्कवर योरसेल्फ। बेटा कुछ फास्ट हो रहा है क्या अंग्रेजी? बेटा कुछ फास्ट, बाउंस बाउंस तो नहीं हो रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? क्या सबको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, या फिर मैं एज यूजली स्लो स्लो आराम से हिंदी में भी समझा सकता हूँ? क्या बाउंस वाउंस तो नहीं हो रहा है? किसी को भी अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो बोलो, बट आराम आराम से समझेंगे। क्योंकि आई डोंट थिंक अभी तुम्हें उस लेवल तक आया नहीं कि जितना स्पीड से मैं बोलूँ उतना स्पीड से तुम कैच भी कर लो। आई होप तुम समझ भी रहे होगे कुछ बच्चे। ओके 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 ओके। हाँ ना, वो पहला वाला वीडियो मैंने कुछ दोस्तों ने देखा, उन्होंने कहा कि तू अंग्रेजी पढ़ा रहा है कि हिंदी पढ़ा रहा है? मैंने कहा व्हाट्स द प्रॉब्लम? उसने कहा यू आर टॉकिंग द फुल वीडियो, मतलब 95% यू आर टॉकिंग इन हिंदी, only 5% you are talking in English, and you are telling that you are teaching spoken English, and what kind of class is going on? मैंने कहा बेटा सबर रख, है कि नहीं? मैंने कहा तूने समवन समवन, आई थिंक खुशी, उसने कहा तो सर कि अब बोल कैसे लेते हैं? बेटा प्रैक्टिस, और कुछ नहीं है बेटा, ऑल थिंग्स प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। और रही बात अंग्रेजी बोलने की, तो मैंने कहा भाई मैं बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, ये सर्टिफिकेट मैं तुमसे क्यों लूँ? आई नो व्हाट आई एम, आई डोंट नीड एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर्स दैट भाई तू क्या है तू क्या नहीं है। सो आई डोंट नीड एनी सर्टिफिकेट्स फ्रॉम एनी अदर्स। सो आई जस्ट नीड दैट यू शुड हैव फेथ ऑन मी, तुम्हारा बस भरोसा मुझ पे होना चाहिए, ओके, एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद तो मैं कहा हूँ कि 3 महीने क्लास कर लो, उसके बाद अगर अंग्रेजी बोलना नहीं आए तो मेरा एड्रेस ले लो, नंबर ले लो, गालियां देना मुझे आके, कलर खींच के लगाना कान के नीचे मेरा। ओके।
ओके, हैव यू सीन ऑल ऑफ यू? क्या तुम सबने देखा है बाहुबली पार्ट 1 वाला मूवी? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन बाहुबली पार्ट 1? किस किसने देखा है? जल्दी कमेंट करो। नमिता नहीं देखे? अभिलिप्सा जी नहीं देखे बाहुबली पार्ट 1? इतना अच्छा मूवी था। दोनों भाई तो लड़े थे उस लड़की के चक्कर में ही, देवसेना। है कि नहीं? वो तक्कड़ वाली थी हम। यस। then Bahubali, there was dialogue of Prabhas when काल के फर्स्ट बाहुबली 1 की मैं बात कर रहा हूँ। जब काल के अटैक किया था, उसके जो लास्ट वाला सीन, लगभग आधा घंटा से ज्यादा तो लड़ाई है, लगभग 1 घंटे का। तो वहां पे क्या होता है कि जब वो वापस भाग रहे होते हैं, है कि नहीं, और एक र्यूमर फैल रहा था उनके अंदर, एक डर फैल रहा था, मृत्यु, है कि नहीं, जो दुश्मन का सेना हमारे धरती पे आ गया है, ये मृत्यु नहीं तो क्या है। तो सब लोग इस बात की अफवाह फैला के मृत्यु मृत्यु करके भाग रहे थे। लेकिन वो सीन याद है कि नहीं है? यस, आई होप सबको याद होगा। तो वहां पे प्रभास ने एक डायलॉग बोला था, महासेना क्या है मृत्यु। ठीक है, लेट मी टेल दिस डायलॉग इन फेवर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। क्या मैं बोलूँ वो डायलॉग? एंड यू हैव टू रेस्पॉन्स। क्या सब रेडी हो? क्या सब तैयार हो? थोड़ा फिल्मी हो जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। महासेना क्या है मृत्यु। लेकिन यही था ना डायलॉग। उसने कहा कि क्या है मृत्यु, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से दूसरों के सेल्फ कॉन्फिडेंस को ज्यादा समझना, ये होता है मृत्यु। आज के जमाने में भी अंग्रेजी से डरकर जीवित रहना है मृत्यु। जिन अंग्रेजों ने मेरी मां का अपमान किया था, उन्हीं का अंग्रेजी आज भी हमारे सामने अट्टहास्य कर रहा है। उसका गुरूर तोड़ने की बजाय उसे पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं मैं। उस अंग्रेजी को धूल चटाकर उसको उसकी औकात दिखाने जा रहा हूं मैं। मेरे साथ आएगा कौन? मेरे साथ आएगा कौन? उस मृत्यु को मारकर मैं अमर होना जा रहा हूं। मेरे साथ आएगा कौन? उसके बाद जय माहेश्मती। हाँ, बहुत अच्छा बात है। तो इट्स वाज जस्ट फॉर योर इंक्रीजिंग जोश। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेस क्लास। तो जो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट खुद के बारे में जानना, है कि नहीं, खुद की अंतरात्मा, अंतर मन में खुद के बारे में जानना, उसका हम कहते हैं इंट्रोस्पेक्ट, है कि नहीं, खुद के गिरबान में झांकना। ठीक है, खुद के गिरबान में झांकना। तो ये वाला डायलॉग में वो थोड़ा मुझे याद नहीं था, इसलिए थोड़ा देख देख के बोला। अगर चाहो तो इसको मैं पढ़ा पढ़ा ना खत्म के बाद फिर से इसको याद करके बोल दूंगा, जबरदस्त होना चाहिए। जो स्टाडी साइकिल। जय माहेश्वती। चलो आ जाओ। तो हम क्या कर रहे थे कि ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट, हाँ, इंट्रोस्पेक्ट की मैं बात कर रहा था। इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, इसका मतलब तुम खुद के बारे में जानो, खुद के गिरबान में झांको, खुद के अंतर मन में झांको। ठीक है, जो लिखना है लिख सकते हो इसको, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। बोलो मेरे साथ, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। बोलो मेरे साथ, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, मतलब खुद के बारे में जानना। क्योंकि ये सब हम किस लिए कर रहे हैं कि भाई जिसको खुद की अपने दिनचर्या पता नहीं है, वो क्या घंटा अंग्रेजी बोलेगा, उसको क्या अपने बारे में कुछ पता नहीं, कुछ ही पता नहीं होता भाई, है कि नहीं, जिसको खुद की आप दिन में क्या क्या करते हो उसको नहीं पता। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट इंट्रोस्पेक्ट, इंट्रोस्पेक्ट मींस मतलब खुद के अंतर मन में झांकना, खुद के गिरबान में झांक कर देखना। लेकिन यही छोटी छोटी बातें बेटा क्या कर रहा है, यही छोटी छोटी चीजें हमें क्या करेगा। मैंने कहा था ना कि नेवर थिंक एनीथिंग लिटिल, एनीथिंग वेरी सिंपल, क्योंकि ये सिंपल सिंपल चीजें ही तुम्हें क्या करेगा, बहुत बड़े बड़े रिजल्ट देते हैं। ओके। तो कहते हैं ना कि यस, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, एक कहते हैं ना, एक
मुहावरा, एक कहावत है कि बूंद बूंद पानी से मिलके सागर का सृष्टि, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है? कि बूंद बूंद पानी से मिलके सागर बनता है, यही होता है ना एक, बूंद बूंद पानी मिलके जो बूंद बूंद से सागर बनता है, ये एक कहावत है। उसका अगर हम उसको हम बोलना चाहें तो इंग्लिश होता है, मैनी ए लिटिल मेक्स अ मिकल। उसका जो अगर इंग्लिश होता है, अगर आ गया जुबान में तो बोल ही देता हूँ, मैनी ए लिटिल मेक्स मिक्कल, MICKL, मिक्कल। इसका मतलब होता है बूंद बूंद, बूंद बूंद से सागर बनता है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? मैनी ए लिटिल मेक्स मिक्कल। ओके, मैनी ए लिटिल मेक्स मिक्कल। तो ये हो गया। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली जो हमारा जाननी है कि देखो, पहला सेंटेंस होता है सर गेट अप और वेकअप, ठीक है? तो तुम कहोगे सर मैं उठता हूँ बेड से, तो मैं क्या कहूँगा? आई गेट अप, है कि नहीं? आई गेट अप। मैं मान लो कि मैं उठता हूँ कि 5 बजे, तो आई गेट अप अर्ली 5 o'clock कह सकते हो। अर्ली नहीं कहना है गधो, अर्ली नहीं कहना है। 5 बजे अर्ली होता है। अगर तुम 9 बजे उठ रहे हो और कह रहे हो कि आई गेट अप अर्ली 9 o'clock, लोग हंसेंगे, क्या 9 बजे उठता है और अर्ली होता है? तो तुम सिंपली कह सकते हो आई गेट अप एट 5 o'clock, है कि नहीं? यस, मैनी ए लिटिल मेक्स होता है बेटा, मेक नहीं, मेक्स मेक। तो बोलो मेरे साथ, आई गेट अप। देखो यहाँ पे दो चीज होता है सर, आपने गेटअप भी लिखा है और वेकअप भी लिखा है, तो बट देयर इज डिफरेंस। क्या डिफरेंस होता है गेटअप और वेकअप में? अगर तुम खुद अपने आप तुम्हारा नींद टूटा और तुम उठे, तो तुम वहां पे लगा सकते हो गेटअप। अगर किसी ने डांट के, पानी डाल के, बुला के उठाया, तो मैं समझता हूँ कि तुम्हें तो बस तुम वेकअप ही करते होगे, गेटअप तो नहीं करते होगे। मम्मी चिल्लाते होगे, "ए, उठ, मैं स्कूल जुए भैन असला उठ गई, सातटा आलानी गध सुईचू, देखना ताकर छुआ बारी के तपु बारी खेलने किस कर।" यस, वेकअप। जो कोई दूसरा अगर तुम्हें उठाए लेकिन तुम्हारा नींद के तोड़े, तो उसको हम कहते हैं वेकअप। लेकिन अगर तुम खुद ही तुम्हारा नींद टूट रहा है, तो ये गेटअप होता है। ओए, क्या सबको समझ में आया? अच्छी बात है, जो गेटअप करता है तो अच्छी बात है। हम भी करते हैं गेटअप, लेकिन थोड़ा लेट में होता है हमारा गेटअप, क्योंकि हमें बुलाने वाला है ही नहीं कोई। जब आँख खुले तब उठो। हाँ, अलार्म बजता है। अलार्म, अलार्म किस लिए रखा है? देखो, अलार्म में हमेशा अगर तुम कोई अलार्म का जो ट्यून होता है तुम देखा, वो बोलेगा कि वेकअप वेकअप, इट्स अ लवली डे, कुछ है भी गाना, वेकअप वेकअप इट्स मॉर्निंग, ऐसा कुछ। तो वहां पे उठो कोई मतलब, इसीलिए कोई थोड़ी कहेगा गेटअप गेटअप। अबे गधे, गेटअप खुद होता है। तो ये आके तुम जाके किसी को उठा रहे हो, तो तुम थोड़ी कह सकते हो कि ए गेटअप गेटअप। तो उसको वेकअप, उठ जा, है कि नहीं? समझ रहा है ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेटअप एंड वेकअप? इफ यू डू, मतलब, अच्छा, और क्या वेकअप? सब होता है, मुझे पता है, सब गधे हैं वो सब, और हम उन गधों का सरदार। चलो, तो गेटअप की अगर बात करें तो देखो, जैसे मैंने कहा कि आई गेटअप एट 5 o'clock, है कि नहीं? मैं उठा कब? सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। इसका मतलब देखो, दीज थिंग्स आर कनेक्टेड विथ आवर लाइफ, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें 5 बजे उठता हूँ, तो आई गेटअप एट 5 o'clock, है कि नहीं? उसके बाद मैंने क्या किया? आई फोल्ड माई हैंड्स। क्या किया मैंने? फोल्ड माई हैंड्स मतलब मेरा हाथ जोड़ना, इसको कहते हैं फोल्ड माई हैंड्स। बेटा देखो, मैंने कहा कि या तुम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दैट्स नॉट मैटर। बट अगर कोई कर रहा है, दुनिया में कोई ऐसा कर भी रहा है, कुछ बंदे होते हैं सुबह उठ के भगवान को प्रार्थना करते हैं बेड से ही, लेकिन भगवान को बुलाते हैं, कुछ होते हैं। तो इसलिए उनका एक्शन को भी हम समय साथ में लेने जाना है, साथ के मतलब साथ में लेके जाना है। ओके। क्या अर्घ्य भाई, आई डोंट अंडरस्टैंड योर कमेंट। आप उठो उठो की को, लेट मी टर्न ऑन द फैन। गर्मी लग रहा है, मुझे लग रहा था गर्मी नहीं लगेगा। तो मैंने कहा कि उसके बाद हमने क्या, तो फास्ट पहला सेंटेंस क्या है? आई गेट अप एट
5 o'clock, जब भी लगाना है लगाओ, जो टाइम इट्स नॉट बाउंड फॉर यू, जिस टाइम तुम उठते हो उस टाइम लगाना है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पहला वाला सेंटेंस मैंने बताया गेट अप एट 5 o'clock, देन आई फोल्ड माई हैंड्स, ठीक है। इसके बाद मैं सिर्फ इशारा में बात करूंगा, तुम्हें बस अपने आप से मुंह से निकलना है सेंटेंस, आई फोल्ड माई हैंड्स, ठीक है। मैंने क्या किया, अपने हाथ जोड़े, उसका हम क्या कहते हैं, फोल्ड माई हैंड्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये फोल्ड माई हैंड्स अगर जारी है तो क्या होगा, अगर फोल्ड माई हैंड्स जारी है तो क्या होगा, अगर हाथ जोड़ने का काम मेरा जारी है, मैं अभी हाथ जोड़ के हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है, हाथ जोड़ रहा हूँ, तो जारी होगा तो क्या होगा, जल्दी कमेंट करो। तुम्हारे पहले मुंह से निकलना चाहिए, देन कमेंट आना चाहिए, है कि नहीं? जारी है तो मैंने क्या कहा था, जल्दी कमेंट करो। फोल्डिंग माई हैंड्स, चलो, क्योंकि तुम गधे हो, तुमको समझ नहीं आएगा, इसको तो लिख भी देता हूँ। चलो 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 चलो, फोल्ड देखो, फोल्ड माई हैंड्स, यही तो सेंटेंस है ना। जारी है तो क्या होगा सर, आईएनजी लगेगा तो क्या होगा, आई के साथ जारी है तो क्या होगा, आई एम, बोलो मेरे साथ, आई के साथ जारी है तो तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए बेटा, आई एम फोल्डिंग माई हैंड्स। यू के साथ क्या होगा, ही के साथ क्या होगा, जल्दी लगाओ इसको, जल्दी तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए सर। जैसे आई के साथ मैंने कहा फोल्ड माई हैंड्स जा रही है तो आई एम फोल्डिंग माई हैंड्स, यू के साथ यू आर फोल्डिंग योर, माई नहीं होगा वहां पे योर होगा, लेकिन यू आर फोल्डिंग माई हैंड्स थोड़ी होगा। तुम कोई दूसरा आके मेरे हाथ थोड़ी जोड़ देगा कि ले हाथ जोड़ दे, तो बच्चे हो थोड़ी, बच्चों को नहीं पता है कि मान लो ठाकुर मतलब भगवान के पूजा घर में चले गए, वो ऐसे जाके बैठ रहेंगे ऐसे, तो मम्मी कहेगा बेटा ऐसा हाथ जोड़ के बैठेगा, थोड़ी कोई कहेगा ऐसे, इतना बड़े हो चुके तो, इसलिए इसको क्या कहना है बेटा कि यू आर फोल्डिंग योर हैंड्स, ओके। फिर तीसरा आता तो ही के साथ क्या लगा, ही इज फोल्डिंग, ही है तो हीज लगेगा, है कि नहीं, हीज हैंड्स, ही है तो थोड़ी हार लगेगा। तो सबको समझ में आ रहा है बेटा, यस फोल्डिंग माई हैंड्स, अभिलिप्सा अरुणिमा शुभम, बहुत अच्छा बात है, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा कि आई एम फोल्डिंग माई हैंड्स, यू आर फोल्डिंग माई हैंड्स, ही इज फोल्डिंग माई हैंड्स। तो हमने कहा ये जो काम अगर खत्म हो गया, ओके, दिस पार्टिकुलर एक्शन गेट एंडेड, तो ये कहानी मतलब ही के साथ अगर खत्म हो गया तो हम क्या कहेंगे, ही है के साथ, अगर मैंने कहा था ना जब खत्म होगा तो हैज हैव लगेगा, लेकिन ही के साथ हैज लगता है, उसके बाद थर्ड लगेगा ही हैज, तो फोल्ड का क्या होता है, फोल्डेड होता है, ही हैज फोल्डेड हिज हैंड्स, हाथ जोड़ने का काम उसने खत्म कर दिया। इसको सवाल करो, इसको सवाल करो, ही हैज फोल्डेड हिज हैंड्स, इसको सवाल करो क्या होगा बेटा, हैज को सामने ले जाओगे, हैज ही फोल्डेड हिज हैंड्स। बट ये सब चीजें फ्लो में लिखना चाहिए, अगर तुम सोच रहे हो ना ये भी कैसे होना चाहिए, तो मेरा जो पिछले 10 दिन बेकार है, कोई फायदा नहीं है 10 दिन पढ़ के मेरे। यस आई एम फोल्डिंग माई हैंड्स, यू आर फोल्डिंग योर हैंड्स, ही इज फोल्डिंग हिज, हैज ही फोल्डेड हिज हैंड्स, बहुत बढ़िया विवेश, आई हैव फोल्डेड माई हैंड्स, बहुत अच्छी बात, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, आई होप सबको समझ में आ रहा है। तो इसको सवाल देखो, जैसे मैंने कहा, क्योंकि अगर कोई सामने 2 4 बंदे नहीं मिल रहे तो उनको सामने बिठाता और उनसे बुलवाता, तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें भी सुनाई देता थोड़ा थोड़ा, तो और नहीं बोल पाता ना, लगा था कान के नीचे राफ्टा, तो तुम्हारा किस्मत अच्छा है या मेरा किस्मत खराब कि तुम सामने नहीं हो मेरा। यस हैज ही फोल्डेड हिज हैंड्स, तो आई होप तुम सब बोल रहे हो मेरे साथ साथ, लेकिन अगर नहीं बोलोगे तो कुछ नहीं बोलो, सब कुछ बेकार हो जाएगा, बोलो ऑल इन वेन। तो कहा था ना सब कुछ बेकार हो, सब कुछ बर्बाद, ऑल इन वेन, लेकिन एवरीथिंग विल गोज इन वेन। तो हमने कहा ही हैज फोल्डेड हिज हैंड्स, तो उसने क्या किया अपना, हैज ही, इसको हम सवाल बनाना है, इसका हैज ही, तो यही सवाल अगर मान लो कोई आगे तुम्हें पूछा, है कि नहीं, ही की जगह के यहाँ पे था, उस सवाल क्या हुआ हमारा, तो हैज ही फोल्डेड हिज हैंड्स, यही वाला सवाल आके तुम्हें कोई तीसरा आदमी पूछा, थर्ड पर्सन बाहर से कोई आया और तुम्हें पूछा कि हैज ही फोल्डेड हिज हैंड्स, तुम उसको क्या कहोगे? अगर कोई बाहर से आके मुझे पूछ रहा है कि हैज ही फोल्डेड हिज हैंड्स, तो तुम क्या कहोगे, जस्ट फॉर ए मोमेंट लेट मी आस्क, क्योंकि भाई मुझे पता है वो अपना हाथ जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है कि नहीं, जोड़ चुका है कि नहीं जोड़ चुका है, या वो जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है। अगर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इजी फोल्डिंग इज हैंड्स, अगर वो जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, तो उसी तरह से पूछ सकता था कि इजी फोल्डिंग इज हैंड्स, तुम कहोगे जस्ट फॉर मोमेंट लेट मी आस्क, तुम उसके पास चले जाते और उसको पूछते कि आर यू फोल्डिंग योर हैंड्स, उसने कहा यस आई एम फोल्डिंग माई हैंड्स बट शी इज नॉट फोल्डिंग हर हैंड्स, तो फिर तुम वहां से वापस आते और उसको कहते सर ही इज फोल्डिंग हिज हैंड्स बट शी इज नॉट फोल्डिंग हिज हैंड्स। वही सवाल अगर यहाँ पे आ जाता कि हैज ही फोल्डेड हिज हैंड्स, तुम उसको जाके क्या पूछोगे, यहीं पे उस दिन तुम्हें समझ में नहीं आया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो दिन, मैंने कहा था कोई आके बाहर से आके तुम्हें पूछा कि हैज ही फोल्डेड हिज हैंड्स, तो तुमने कहा जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क, मुझे पूछ के आने दो,
लेकिन और इफ यू वेंट विदाउट सेइंग समथिंग, और ऐसे चले गए अगर उसको कुछ बिना बताया, तो इट विल बी अगेंस्ट कोर्टसी। मैंने बताया था कि इट्स अगेंस्ट कोर्टसी, शिष्टाचार का खिलाफ है। तो तुमने कहा कि जस्ट फॉर मोमेंट ले मियास, तुम चले गए, उसके बाद उसको जाके क्या पूछोगे? सवाल यही है हमारा। वो वाला बंदा तुम्हें सवाल पूछा है, हैज ही फोल्डेड हिज हैंड्स, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तुम्हें दिख सकता है, यहाँ पे नहीं है लेकिन दिखो। उसने आके तुम्हें सवाल पूछा कि हैज ही फोल्डेड हिज हैंड्स, तुम चले गए उसके पास जिस बंदे के बारे में पूछा था, तुम उसको जाके क्या पूछोगे? क्या पूछोगे उसको? जल्दी कमेंट करो। बहुत बढ़िया। अरे रूपा, आई जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क, आर यू फोल्डिंग हिज, आर यू फोल्डिंग हिज हैंड्स? यस आई एम फोल्डिंग माय हैंड, बट शी इज नॉट फोल्डिंग हर हैंड्स। अगर वो बहुत गलत है, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं समझाने के लिए कहा था कि जारी है तो तुम सवाल है कि हैज ही फोल्डेड हिज हैंड्स, क्या उसने अपना हाथ जोड़ चुका है? तो तुम उसको जाके ईज लगा के आर लगा के कैसे सवाल करोगे? बड़ा गलत कर रहे हो, इसका मतलब अधूरा है ज्ञान तुम्हारा। ये सर बहुत बढ़िया। हैव यू फोल्डेड योर हैंड्स? हैव यू फोल्डेड योर हैंड्स? ये वाला पॉइंट जब तक क्लियर नहीं होता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। उसने कहा कि हैज ही फोल्डेड हिज हैंड्स, तो तुम जाके उसको पूछोगे ना जिसके बारे में पूछ रहा है, जैसे ही के बारे में। जैसे मान लो ही के जगह पे मैंने कहा कि राधा, भाई हाँ, तो यहाँ पे हार लिख देते, चलो राधा नहीं लिखेंगे, मोहन लिख देते। हैज मोहन फोल्डेड हिज हैंड्स, तो ये वाला सवाल है। तो तुम जाके मोहन को क्या पूछोगे? यू लगा के ही तो पूछोगे ना, ये वाला बताया था मैंने, क्योंकि वो उस टाइम पे तुम्हारे लिए यू बन जाएगा। तो क्या होगा? हैव यू फोल्डेड योर हैंड्स, यही बनेगा ना सवाल। बेटा सबको समझ में आ रहा है ना? कहाँ गया अभिलिप्सा, शुभम? यस, हैव यू फोल्डेड योर हैंड्स? चलो कोई बात नहीं। जस्ट फॉर मोमेंट, हैव यू फोल्डेड योर हैंड्स? उसने कहा यस आई हैव फोल्डेड माय हैंड्स बट शी हैज नॉट। बहुत बढ़िया दिव्य दिशा, शी हैज नॉट फोल्डेड हर हैंड्स। लाजवाब, जबरदस्त, शुभम बहुत बढ़िया। अभिलिप्सा मैम, क्या हाल चाल? झूला वूला में बैठ के थोड़ी क्लास व्लास कर रहे हो क्या? जो ठीक ठाक इसको रेस्पॉन्स नहीं करेगा उसको श्राप मिलेगा। वो झूल रहा होगा, उसका झूला टूट जाएगा और वो गिर जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? उसको जाकर तुम क्या पूछोगे? हैव यू फोल्डेड योर हैंड्स, यही था ना सवाल। अर्घ्य रूपा है कि नहीं? बाबली चला गया, नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई उसने पूछा कि हैज ही फोल्डेड हिज हैंड्स, तो वो जब तुम कहोगे तो जस्ट फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क, तुम उसको जाके पूछोगे क्या तुम अपना हाथ जोड़ चुके हो? उसके कहेगा कि यस या नो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या होगा तो कहेगा नहीं, तो नहीं। तुम उसको पूछोगे क्या? क्या तुम, वही जो तुम लगता है तो उसको हम तुम के साथ क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे ना, हैव यू फोल्डेड योर हैंड्स? उसने कहा यस आई हैव फोल्डेड माय हैंड्स बट सी ये वाला, सॉरी बाएं साइड में सी था, बट शी के साथ क्या लगता है? हैज लगता है, शी हैज नॉट फोल्डेड हर। समझ में आ रहा है सबको? ये बेटा कोई ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, ये फ्लो में निकलना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर, ये जो सेंटेंस में बता रहा हूँ, जारी है, खत्म हो गया, ये सब फ्लो में निकलना चाहिए। जब तक फ्लो में नहीं निकल रहा है तब तक भाई कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। यस, हैव यू फोल्डेड योर हैंड्स? यस आई हैव फोल्डेड माय हैंड्स बट शी हैज नॉट फोल्डेड। बहुत बढ़िया आगे होगा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल आता है, तो इसको मान लो जिंदगी से जोड़ लो। हम इसको हमने जिंदगी सुन लिया, आई फोल्ड, तो इसको हमने जिंदगी से जोड़ देंगे तो क्या होगा? सर आई फोल्ड माई हैंड्स, यही होगा ना? आई फोल्ड माई हैंड्स, मैं अपने हाथ जोड़ता हूँ, क्योंकि मैं रोज जोड़ता हूँ, तो इसको मैंने अपनी जिंदगी से जोड़ दिया, तो आई फोल्ड माई हैंड्स। ठीक है, तो इसको सवाल करो, इसको लगाओ यू के साथ। पहले इसको सवाल करो, इसको क्वेश्चन करो, फिर इसको यू के साथ लगाओगे तो क्या होगा? यू फोल्ड योर हैंड्स, यू फोल्ड योर हैंड्स, है कि नहीं भाई? और इसको सवाल करो। जल्दी 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 जल्दी, मेरे पास टाइम काफी कम है, तो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा और क्लास ले सकता हूँ, लेकिन 10 तो खत्म करना ही होगा, जो लिखा हो तो खत्म करना होगा। लेकिन उसके साथ साथ रिवीजन भी जरूरी है, प्रैक्टिस भी जरूरी है। मैं बस इतना बोल दिया कि आई गेट अप एट 5 o'clock, लेकिन आई फोल्ड माई आईज, सॉरी फोल्ड माई आईज बोल रहा हूँ, आई फोल्ड माई हैंड्स। यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होता। अगर तुम उसको पूछोगे, किसी को पूछोगे, या फिर कोई तुम्हें आके पूछ रहा है क्या तुमने हाथ जोड़ा, क्या तुम हाथ जोड़ते हो, ये सवाल हुई है ना? ये सवाल क्या था? सर आई फोल्ड माई हैंड। इसको अगर सवाल करोगे तो डू से लगो, मैंने कहा था ना डू आएगा, डू।
एक स्पेशल वर्ड की जरूरत होता है। यस, बहुत बढ़िया। डू आई फोल्ड माई हैंड्स, डू यू फोल्ड योर हैंड्स। बहुत बढ़िया दिव्य, जबरदस्त। तो मैंने कहा इस तरह का अगर सेंटेंस जो जो चीज हमारी जिंदगी से जुड़ चुका है उसको अगर हम सवाल पूछना चाहेंगे तो एक खास वर्ड की जरूरत है, ठीक नहीं? आई और यू के साथ। तो आई और यू के साथ एक खास वर्ड क्या है सर? दैट इज डू। यही था हमारा डू। इसको ले आओ और इसको लेके आके सामने लगा दो। डू आई फोल्ड माई हैंड्स, डू यू फोल्ड योर हैंड्स। बस कहानी खत्म, है कि नहीं? यस, डू आई फोल्ड माई हैंड्स, डू यू फोल्ड योर हैंड्स। बहुत बढ़िया। हम्म। तो अगर ये यस कहेगा तो यस आई फोल्ड माई हैंड्स, तो सर अगर वो है नो कहा तो नो कहने के लिए तो वही डू जो यहाँ पे लगा था, जो डू लगा था, डू आई फोल्ड माई हैंड्स। तो अगर इसको लगाना डू को यहाँ ले आओ, आई डू उसके साथ नोट लगा दो, क्योंकि नेगेटिव में नोट लगता है, नोट कभी क्या नहीं रहता, वो एक खास वर्ड उस डू या डज को लेके आएगा। तो डज जहाँ लगेगा वो डज के साथ लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम कहेंगे आई डू नॉट फोल्ड माई हैंड्स, यू डू नॉट फोल्ड योर हैंड। डू नॉट को डोंट को जो कहना है को। लेकिन यहीं पे एक सवाल आता है कि सर अगर हम इसको ही के साथ लगा दें या फिर कोई थर्ड कोई और बंदा है उसके साथ हम इसको लगा दे रहे हैं, ठीक है? कोई भी चीज अगर ही के साथ जुड़ चुका है, सवाल हमने लिखा है यहाँ पे खुशी, उसकी जिंदगी से हाथ जोड़ना जुड़ चुका है, कि वो काफी पोलाइट लड़की है, तो हम कह सकते हैं खुशी क्या होगा? सेंटेंस क्या होगा? फोल्ड होगा कि फॉल्स होगा? बोलो, कमेंट करो। फोल्ड होगा कि फॉल्स होगा? क्योंकि मैंने कहा था कि जब सिंगल के साथ आता है तो यहाँ पे एक ज का साउंड आता है, यस और यस का रोल रहता है वहां पे, थोड़ा एक ज का साउंड आता है कि नहीं? यस, फॉल्स होगा। बहुत अच्छी बात है, खुशी फॉल्स होगा। जबरदस्त बात। तो यहाँ पे हमने कहा कि सर यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, खुशी फॉल्स आ रहे हैं, तो इसको सवाल करो, सवाल करो इसको। क्या खुशी अपने हाथ जोड़ती है? सवाल करो इसको। यस, डज आएगा, डज डज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डज खुशी फोल्ड हर हैंड्स। यस, डज सी फोल्ड हर हैंड्स। यस, सी फोल्ड्स हर हैंड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सबने सबने बहुत जबरदस्त किया। तो हमने कहा खुशी फोल्ड्स हर हैंड्स, तो इसको अगर हम नहीं करेंगे, मतलब इसमें नोट लगाएंगे, नहीं करते बाबली को, तो क्या होगा? नोट लगाना है तो क्या होगा भाई? बोलो जल्दी जल्दी। बेटा फ्लो में निकल, जैसे मैंने कहा नोट लगाना है तो उसके मुंह, तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए सर जो उसका आंसर होगा। अगर मुंह से नहीं निकल रहा है, अगर तुम सोच के कोई ग्रामर का स्ट्रक्चर याद करके बोल रहे हो, तो बेटा स्पोकन कभी हो ही नहीं सकता तुम्हारा। जैसे ही देखा कि सर इस खुशी उसकी जिंदगी से जुड़ा है तो खुशी फॉल्स हर हैंड्स, वो नहीं जोड़ती है तो खुशी डज नॉट फोल्ड। लेकिन यही होगा ना, किसने क्या कमेंट किया? जरा देखता हूँ, दो बंदों ने कमेंट किया। यस, डज नॉट फोल्ड हर हैंड। बहुत अच्छी बात। डज नॉट खुशी फोल्ड हर हैंड। बड़ा ये वाला सवाल नहीं, मैंने पूछा कि नोट लगाने यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे नोट लगाने, खुशी नहीं करती है, ठीक है? वो सवाल नहीं, क्या वो वाला सवाल। यस, खुशी डज नॉट फोल्ड हर हैंड्स। यस, बहुत बढ़िया आर्ग्यू होगा, बहुत अच्छा डिफिनेशन। देखो, लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा कि खुशी फोल्ड्स हर हैंड, तो हम वहीं पे जब लगाएंगे यहाँ पे खुशी, तो हम लगाएंगे सर नोट अकेला नहीं आता है, तो अकेला इसके साथ क्या आएगा? डज लेके आएगा। खुशी डज नॉट फॉल्स होगा कि फोल्ड होगा? क्योंकि एक ही बार हम मतलब इस सेंटेंस में एक ही बार हम जो का साउंड लाएंगे, एक ही बार एस को हम लगा सकते हैं, ठीक है नहीं? तो यहाँ पे डज में जो का साउंड, उसके बाद अगर एस को और लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसमें फॉल्स नहीं होगा, फोल्ड होगा। खुशी डज नॉट फोल्ड हर हैंड्स। आई होप सबको समझ में आया। तो फिर चलो बोलो, कॉम, लेट्स कॉम बैक। ओके, बोलो लेट्स कॉम बैक। बोलो हियर वी गो। फिर से वापस आता, कोई बोरियत नहीं, कोई चीज नहीं। मैंने पेक से उठाया यहाँ पे सेंटेंस, उसको इतने हिसाब से हमने बदल दिया, और आई होप तुम भी इसको अच्छी तरह से बदल पा रहे हो। अगर नहीं बदल पा रहे हो तो तुम इसको प्रीवियस वीडियो को फिर से देखो मेरा, वहाँ पे दस लगभग 10-15 घंटे में प्रैक्टिस करवा चुका हूँ पिछले 10 वीडियोज में ये सब चीजों को। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सर, हाँ, लेट्स कम बैक। चलो बोलो मेरे साथ, लेट्स कम बैक और हियर वी गो। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। कोई बोरियत नहीं बेटा। पहला वाला सेंटेंस क्या था सर? आई गेट अप एट 5 o'clock। बोलो मेरे साथ, आई गेट अप एट 5 o'clock। ओके, देन देन मैंने क्या किया? देन आई फोल्ड माई हैंड्स। उसके बाद मैं क्या करता हूँ? अपना हाथ जोड़ता हूँ। देन आई फोल्ड माई हैंड्स। ओके, ये तो बात समझ में आ गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ? देन आई स्माइल ए बिट।
देखो यहाँ पे तीसरा वाला सेंटेंस लिखा है, देन आई स्माइल ए बिट, है कि देन आई स्माइल ए बिट। स्माइल करना इस तरह से ही करके दांत में दिखाना, तो मतलब सुबह सुबह अगर मान लो तुम बिस्तर में उठ गए और सुबह उठ के ऐसे हाथ जोड़ के भगवान को ही हो, तो घर वाले सोचेंगे ले भाई भूत भूत घुस चुका है इसके अंदर, कांचना घुस चुकी है, लो झाड़ू वाड़ू लेके पहुंच गए साहब भूत उतारने के लिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो तुम वहां पे क्या करोगे, क्योंकि बेटा ये करते हैं, है कि नहीं, काफी मैंने लोगों को देखा हूँ, जब भी सुबह उठते हैं तो सबसे पहले वो हाथ जोड़ते हैं भगवान को, मतलब भगवान की नाम याद करते हैं, एंड वेन एवर दे आर रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ गॉड, देयर वाज ए स्माइल इन देयर फेस। तो उनके फेस में क्या रहता है, स्माइल रहता है कि नहीं? तो हम ये कह सकते हैं, मैंने कहा कि पहला वाला, पहला फिर से लेट्स कम बैक, फिर से हम शुरू करते हैं फुल स्टैंड। आई गेट अप एट 5 o'clock, देन आई फोल्ड माई हैंड्स, देन आई स्माइल ए बिट। स्माइल ए बिट मतलब थोड़ा सा हंसता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हंसना, स्माइल करना, हंसना तो लव हो जाएगा, तो मैं कहा उसके बाद थोड़ा सा मैं मुस्कुराता हूँ, यस द टर्म इज मुस्कुराना, है कि नहीं? उसके बाद मैंने कहा कि देन आई स्माइल ए बिट, ओके। और फिर हाँ कांचना, यस लेट्स कम बैक। अच्छा मैंने बोला था ना कि रात को हॉरर वॉरर नहीं देखता हूँ अकेला जब होता हूँ। चलो यहाँ पे आ जाओ, क्या इसी वाले सेंटेंस को स्माइल ए बिट, आई स्माइल ए बिट, इसको तुम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? इस वाले सेंटेंसेस को इस वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते नहीं कर सकते? तो आराम से कर सकते हो। इसका स्ट्रक्चर मैं फिर से दे दूंगा, 10 के 10 सेंटेंस को उसी स्ट्रक्चर में तो बदलना है कि नहीं? जारी है, खत्म हो गया, जिंदगी के साथ जुड़ा है, तो ये तीनों स्ट्रक्चर के साथ, तीनों जो फॉर्मेट के साथ हम इसको कर सकते हैं, ओके। तो हमने कहा आई स्माइल ए बिट, मैं थोड़ा सा मुस्कुराता हूं, बोलो मेरे साथ, आई स्माइल ए बिट, ओके, आई स्माइल ए बिट। फिर से बोलो मेरे साथ, ठीक है ना, जहां पे बैठे हो बेटा ध्यान से बोलो कि आई गेट अप एट 5 o'clock, देन आई फोल्ड माई हैंड्स, देन आई स्माइल ए बिट। तीनों सेंटेंस एक साथ बोलो, आई गेट अप एट 5 o'clock, ठीक है, गेट अप मतलब थोड़ा, गेट अप मतलब ये नहीं कि मतलब नींद से उठना, थोड़ी ये कि जाके छत छत में जाकर रास्ते में जाकर रिकॉर्डेंस लगा के चला आना, गेट अप। अबे निकले नहीं हो अब तक गधो, बेड से उतरा उतारा ही नहीं है अब तुम्हें, में बेड में ही हो सब तुम, ठीक है। तो बोलो आई गेट अप एट 5 o'clock, देन आई फोल्ड माई हैंड्स, देन आई स्माइल ए बिट। उसके बाद मैंने क्या किया, आई थैंक गॉड, आई थैंक गॉड फॉर ए न्यू डे। उसके बाद मैंने भगवान को धन्यवाद किया, किसके लिए, एक नई दिन के लिए, एक नई सुबह के लिए, एक नए दिन के लिए, क्योंकि भाई धन्यवाद करना चाहिए, करो नहीं करो, मैं आई एम नॉट टीचिंग यू हाउ टू स्टार्ट योर डे, ओके, हाउ टू चेंज व्हाट एवर यू आर डूइंग इज बेटर फॉर यू। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लोग ऐसा करते हैं, तो मैंने कहा जो भी एक्शन वो हो सकता है उन सबको हमें लेके जाना है। तो हमने कहा कि भगवान को हमें थैंक यू किया कि क्योंकि भाई कुछ लोग मतलब भाई एक सेकंड में 3-4 लोग कहीं ना कहीं मर ही जाते हैं, ठीक है नहीं, और ये ज्यादा मरते हैं, कई मतलब एक रात में कितने लोग चले भी गए होंगे, तो मतलब कुछ लोगों के लिए दैट पर्टिकुलर नाइट वाज द लास्ट नाइट, बट फॉर अस गॉड हैज गिवन ए न्यू डे फॉर अस, हमारे लिए एक नई दिन हमें दिया। तो नई सुबह की जब शुरुआत होती है तो हम जनरली कह सकते हैं कि भगवान का हम शुक्रिया कर सकते हैं। हाथ जोड़ के क्या है, वहां पे हाथ जोड़ के क्या हम गाना गाएंगे कि जो तुझे देखा तो ये जाना सनम, वहां पे हाथ जोड़ा है तो भगवान को ही बुलाएंगे ना, ऐसे थोड़ी होगा कि मोर डालेंगे, मोर डालेंगे 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 ऐसा। घर वाले ना झाड़ू झाड़ू का डंडा लगे मारे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? Yes, I wake up at 5 o'clock, then I fold my hands, and then I smile a bit, then I thank God for a new day. Yes, बहुत अच्छा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ जब मैं घर से आया हूँ तब तो उसके बाद तो मैं जो कुछ करता हूँ उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सुबह उठा लगा दी गाना कोई बहुत 90s का, या फिर कुछ भी भजन वजन लगा दिया कभी 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 कभार। तो घर में मुझे याद है, आई थिंक आई वाज इन क्लास 9 or 10, एंड एट द टाइम देयर वाज अ ओडिया सॉन्ग व्हिच वाज वेरी ट्रेंडिंग एट द टाइम, तू काच घर झिया मो माटी घर पुओ चांद पाई चकर जेमिति तोते भलो पाइबी केमिति, that was the song was like this, and I get up from the bed and I started singing that particular, and my mom slapped me
गधा। ଶୋଇ ଉଠିକି କିଛି ନାହିଁ ତତେ ଭଲ ପାଇବି କେମିତି? ବହୁତ ରସିକତା ଝରି ପଡୁଛୁ ପ୍ରେମ। ओहो, क्या समझ में आ रहा है सबको जो मैं बताना चाहता हूँ? यस। थैंक गॉड फॉर ए न्यू डे। ओके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने भगवान को धन्यवाद किया, शुक्रिया किया, क्योंकि हमारे लिए एक, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि कोई मतलब चाचा जी सोए और चाचा जी उठे नहीं, चाचा जी चल गए, ठीक नहीं, तो उसके बाद सुबह सुबह खबर चला कि चाचा तो मर गए लो। तो कुछ लोगों के साथ द नाइट, जो रात होता है वो आखिरी रात हो सकता है कि नहीं? किसको पता है कौन सी रात आखिरी हो, कौन सी बात आखिरी हो, है कि नहीं? मिलजुल के रहो यारो, क्या पता कौन सी रात आखिरी हो, कौन सी मुलाकात आखिरी हो। सो ये ऐसे शायरी वायरी की चक्कर छोड़ो, तो लेट्स कम बैक, फिर से वापस आ जाता हूँ मैं। ओके, प्रशंसा करियो। देयर इज नथिंग लाइक एप्रिसिएशन, और हाँ, कोई अप्रिशिएट करने की जरूरत नहीं हो, दैट वाज होता है बचपन में तो भाई अलग ही लेवल का शरारत थे हम। अब भी है थोड़ी, अब भी कहाँ बदल गया, थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया कंधों पे, ठीक है। एंड आई होप तुम भी मेरे साथ कंधा पे कंधा मिला के चलोगे, ठीक है। कंधे पे से के साथ कंधा मिला के चलना कहता है कि रॉब योर शोल्डर्स विथ मी, है कि नहीं? कंधे के साथ कंधा मिला के चलने को कहते हैं रॉब योर शोल्डर्स विथ मी। चलो इसको भी लिख लो, थोड़ा एक दो लाइन बीच बीच में आ जाता है जब। रॉब योर शोल्डर्स विथ मी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ट्राई टू रॉब योर शोल्डर्स विथ मी, बोलो मेरे साथ, ट्राई टू रॉब योर शोल्डर्स विथ मी, मतलब अपने है कि नहीं, तुम मेरे साथ, कहते हैं ना कि कंधा से कंधा मिला के चलो मेरे साथ, है कि नहीं? उसको कहते हैं कि रॉब योर शोल्डर्स विथ मी। ओके, रॉब योर शोल्डर्स विथ मी, रॉब योर शोल्डर्स विथ मी। ओके, तो लेट्स कम बैक, लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके, बोलो हियर वी गो, फिर से हम शुरू करते हैं कि आई गेट अप एट 5 o'clock, देन आई फोल्ड माई हैंड्स, देन आई स्माइल ए बिट, एंड देन आई थैंक गॉड फॉर ए न्यू डे, है कि नहीं? बेटा ये सब अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एक 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 जबर, मतलब कोई भी 10 का 10 या फिर जो 100 के समझ से मैं करवा दूंगा, एक साथ निकलना चाहिए कि नहीं? 5 मिनट में सारे का सारे निकल जाए। जैसे मैंने कंट्रीज तुम्हें पढ़ाया था ना, वो जो मैं वाले क्लास में शुरू करके एशिया कंट्री, जैसे एशिया पढ़ा दिया, 48 कंट्रीज एक ही फटाक से निकलना है सारे के सारे। उसी तरह से ये सब चीजें कोई आराम से बोलना है कि सर आई गेट अप एट 5 o'clock, देन आई फोल्ड माई हैंड्स, देन आई स्माइल अ बिट, देन आई थैंक गॉड फॉर अ न्यू डे। तो इस तरह से एक फ्लो में निकलना चाहिए। ओके, अच्छा, रॉब का स्पेलिंग अच्छी बात है, दिखा RUB, मैंने क्या लिखा है? RUB, अच्छा सॉरी, मतलब ए और यू थोड़ा व्हाइट बोर्ड पे हो जाता है, RUB होता है, रब, रब योर शोल्डर्स विथ मी। ओके, चलो फिर हम आ गए कहाँ पे? सर हमने भगवान को धन्यवाद किया, थैंक, देन आई थैंक गॉड फॉर ए न्यू डे। अगर इसी को तुम बदल सकते हो ना, सर जा रही है तो थैंकिंग गॉड होगा, खत्म हो गया तो थैंक्ड गॉड होगा, है कि नहीं? क्या तुमने भगवान को थैंक यू किया है तो यहाँ पे हैव लगा, हैव यू थैंक्ड गॉड फॉर ए न्यू डे, है कि नहीं? हेलो, हाँ ना, सत्यम सर को डाकी दे, गोटे मार्केट जी घर पे मार्केटिंग करनी, मार्केटिंग कर करके 11:30 ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହଁ ହଁ। यस, रब योर शोल्डर विथ मी। चलो आगे चलते हैं, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। देन ओपन माई आईज, देन आई ओपन माई आईज, उसके बाद जाके मैंने अपने आंख खोला। तो इसका मतलब ये कि जब सुबह उठे तो आंख नहीं खुलता, उस टाइम पे आंख खुलता है। मैं ये नहीं कहता कि बस ऐसे ही उठ गए और हाथ जोड़ के बैठ गए, थोड़ा थोड़ा आंख खुलता है, लेकिन जब इतना सब कुछ तुम कर लोगे तब जाके तुम जो रियल में आंख खुलना, मुझको कहते इधर उधर थोड़ा देखोगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उसके बाद बोलो 5वां नंबर का सेंटेंस कहते हैं नहीं, ओपन माई आईज। इसको भी तुम किसी भी, जा रही है तो ओपनिंग, खत्म हो गया तो ओपेंड, जिंदगी के साथ जुड़ा है तो सारा लगा दो ही के साथ, तो ओपेंस हो गया, है कि नहीं? यही सब बेटा चीजें तुम बार बार प्रैक्टिस करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमने कहा कि देन आई ओपन माई आईज, बोलो फिर से शुरू करते हैं। आई गेट अप एट 5 o'clock,
आई गेट अप मॉर्निंग, जो टाइम तुम्हारे हिसाब से लगाना है। आई गेट अप एट 5 o'clock, देन आई फोल्ड माई आईज, गलत, सॉरी आईज बोल दिया, देन आई फोल्ड माई हैंड्स, है कि नहीं, देन आई स्माइल ए बिट, देन आई थैंक गॉड फॉर ए न्यू डे, फिर देन आई ओपन माई आईज। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देन आई ओपन माई आईज, बोलो मेरे साथ साथ, ये सारा का सारा 5 को एक साथ मिला के बोलो जल्दी जल्दी। आई गेट अप एट 5 o'clock, देन आई फोल्ड माई हैंड्स, उसके बाद क्या काम है, देन आई स्माइल ए बिट, देन आई थैंक गॉड फॉर द न्यू डे, देन आई ओपन माई आईज। बोलो मेरे साथ साथ, ये 5 के 5 एक साथ, है कि नहीं? Yes, I wake up at 5 o'clock. Then I fold my hands and smile a bit. Then I बेटा छोड़ना नहीं है. Then I thank God for a new day. Then I open my eyes. ठीक है. सबको देन लगा के बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने ये किया, उसके बाद ये किया, कोई बोरियत नहीं है बेटा। अगर कहेगा कि नहीं यू आर मेकिंग मिस्टेक, तुम कहोगे यू आर मिस्टेकन, तू खुद गलत है बेटा। आई एम नॉट डूइंग मिस्टेक, यू आर यू आर मिस्टेकन। ओके, तो 5वां इसको जोड़ सकते हो ना। उसके बाद 6 वाला देखो, छठवा जो है, टॉस माई बॉडी टू लेफ्ट और राइट। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, तो आई टॉस माई बॉडी टू लेफ्ट या राइट, ये तुम्हारे हिसाब से जोड़ना है। अगर दोनों साइड कर रहे हो तो अच्छी बात है। देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉस? यस, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉस? कौन कौन ऑनलाइन है वो देखें जरा। और ये हुए दिव्येश, शुभम, अभिलिप्सा। अभिलिप्सा, एम आई ऑडिबल टू यू? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? क्या बोल दिया? ऑल्सो भांगी बा बेटा, कैन यू आस्क मी क्लियरली? ऑल्सो शुभम, क्या पूछ रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभिलिप्सा जी, क्या मेरी आवाज आपको आ रहा है? तो आया हे लुआ भंगा, टीना भंगा, पूर्णा, खाता बोई, प्लास्टिक। क्या मेरी आवाज सबको आ रहा है? अभिलिप्सा जी, क्या यार पता नहीं, झूला झूल रही होगी। अच्छा, आ रहा है। बेटा थोड़ा रेस्पॉन्स भी कर लिया करो। आई होप तुम वहां पे बैठ के बोल रहे होगे। कोई बोरियत नहीं लाना है बेटा, ठीक है? अच्छा, कॉपी यही की थी ला सब एक से एक बड़े महान महान कलाकार सब हैं। चलो गधों सब, यहाँ जाओ। तो उसके बाद मैंने कहा टॉस माई बॉडी टू लेफ्ट। टॉस, देखो टॉस का मतलब होता है करवट लेना। टॉस का मतलब होता है करवट, करवट करवट लेना, समझते हो ना? अरे रात में इधर करवट लेना, उधर करवट लेना, है कि नहीं? करवट लेना, उसको ओडिया में क्या कहते हैं? आई थिंक कोड़ई की सुईवा ऐसा कुछ, है कि नहीं? उसको क्या कहते हैं? करवट लेना, उसको कहते हैं टॉस। टॉस माई बॉडी मतलब मैं अपने बॉडी को क्या कर रहा हूँ, टॉस माई बॉडी टू लेफ्ट। अगर मैं बाएं तरफ करवट ले रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई टॉस माई बॉडी टू लेफ्ट। अगर मैं दाएं तरफ करवट ले रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई टॉस माई बॉडी टू राइट। अगर मेरी लड़की करवट ले रही है, मेरी लड़की कहाँ से, मान लो है मेरी लड़की, है कि नहीं? अगर तुम्हारी लड़की या फिर तुम्हारे भाई बहन जो भी है, तुम उसकी जगह पे मैंने मेरी लड़की, तो माई डॉटर में बोलूंगा, है कि नहीं? माई डॉटर क्या करूंगा, टॉस से क्या होगा बेटा, ये लग जाएगा, माई डॉटर टॉसेस हो जाएगा, है कि नहीं भाई? अब देखो टॉस, सिक्का देखोगे नहीं, देखो गधों सब, सिक्का। सिक्का जैसे क्या होता है, जब हम उसको टॉस करते हैं, जब उसको हम टॉस करते हैं तो ऐसे घूम घूम के जाता है ना, इधर की नहीं, इधर उधर करवट ले लेके जाता है। सबने देखा होगा टॉस। कहाँ गया सिक्का? पोर्स कहाँ है मेरा? वहां है, नहीं है मेरा सिक्का, मतलब है, दूर है थोड़ा पोर्स में। सिक्का क्या करता है, इस तरह से उछल उछल के जब जाता है तो घूम घूम के जाता है ना, तो उसी को हम कहते हैं टस लेना। टस 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 मतलब उसका मतलब करवट ले लेके जा रहा है। वही तो मतलब घूम घूम के ही तो जाता है ना। क्या सबको समझ में आ रहा है? ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? क्या मैं बताना चाहता हूँ, मैंने कहा कि सर टॉस मतलब होता है कि करवट लेना। उसके बाद मैंने जब ये सब कर लिया, फिर तभी भी उठने का मन नहीं करता ना, आंखें खोला तो फिर अंगड़ाइया वंगड़िया ली, फिर इधर उधर थोड़ा यही जो होता है कि नहीं? या फिर बेड में ही इधर तो इधर थोड़ा घूम गए, इधर थोड़ा घूम गए, मम्मी फिर आके बोल रही कि "ए, उठ", है कि नहीं? अब बुचिल्ला है क्या के तुम्हारा नाम, जो भी किसी के नाम यहाँ पे लेना नहीं जाना, है कि नहीं? बचपन में मम्मी मार मार के उठाते थे, आज जब सोता हूँ ना तब उठा देनी है तो
अगर वो बाहर भी डिस्टर्बेंसेस हो रहा है तो दरवाजा लगा लेती है, सोने दो लड़के को, क्योंकि उसको पता है रात में देर में सोता हूँ और कुछ कुछ ना कुछ तो करता ही रहता हूँ, है कि नहीं। और जब सब तैयार हो जाएगा तब जा के बोलती है, बेटा उठियो नहीं। तो हाँ 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 जरूर। ठीक है, तो टॉस की हम बात करें, टॉस में बॉडी तो लेफ्ट और राइट, अगर तुम दाएं तरफ करवट ले लो तो क्या बोलोगे। इसी को बेटा हर चीज को तुम उसी फॉर्मेट में डालना आना चाहिए। टॉस का ईडी हो जाता है, टॉस्ट हो जाएगा, ईडी लगा दो इसमें तो V3 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, टॉस्ट हो जाएगा, है कि नहीं। और कोई मेरे लड़की, मैंने जैसे मैंने कहा माई डॉटर टॉसेस, माई की जगह पे वहां पे क्या होगा, हार होगा। माई डॉटर टॉसेस हार बॉडी टू लेफ्ट और राइट, जो जिस तरह से करवट ले रही होगी वही मैं बताऊंगा। सब मम्मी का लाडला। चलो वही मेरा छोटा भाई होता है उसको गाली पड़ता है। मुझे समझ में नहीं आता, जो गाली होता है वो हम दोनों के लिए होता है फिर उसी के लिए होता है, पता नहीं उसी के बहाने मुझे भी डांट देते होंगे। शायद डायरेक्टली वो कहने में उसको तो उनको थोड़ा मतलब क्या थोड़ा, एक के बहाने दोनों को, मुझे पता है शायद दोनों के लिए होता होगा। चलो आ जाओ, वहां पे नहीं जाएंगे। टॉस माई बॉडी टू लेफ्ट टू राइट, ओके, तो इस पे चलो पहले से एक नंबर से 6 तक बोलो, कि मैंने कहा कि सर एक नंबर से 6 तक बोलो, एक नंबर से क्या 6 तक बोलो। आई गेट अप एट 5 o'clock, आई फोल्ड माई हैंड्स, आई स्माइल अ बिट, देन आई थैंक गॉड फॉर ए न्यू डे, आई देन आई ओपन माई आईज, देन आई टॉस माई बॉडी टू लेफ्ट टू राइट। एक साथ मेरे फ्लो में निकलना चाहिए। बोलो बोलो, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। आई गेट अप एट 5 o'clock, देन आई फोल्ड माई हैंड्स, देन आई थैंक गॉड फॉर ए न्यू डे, देन आई स्माइल अ बिट, वहां पे छोड़ दिया मैंने स्माइल बिट को, आगे जो घुसा था वहां पे, ठीक है। आई गेट अप एट 5 o'clock, देन आई फोल्ड माई हैंड्स, देन आई स्माइल अ बिट, देन आई थैंक गॉड फॉर ए न्यू डे, देन आई ओपन माई आईज, उसके बाद देन आई टॉस माई बॉडी टू लेफ्ट टू राइट। जो अगर दोनों तरफ करो तो लगा दो लेफ्ट एंड राइट। इधर भी करवट लिया, उधर भी करवट लिया। एक साथ 6 कैसे बोलना चाहिए, फटाक से, फटाक से तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए। यस दिव्य दिशा, बहुत अच्छी बात है। आई वोक अप एट 5 o'clock, हाँ तो वेकअप ही लगा। गेटअप से होता नहीं तुमसे, मुझे पता है। देन आई फोल्ड माय हैंड्स एंड स्माइल अ बिट, देन आई थैंक गॉड फॉर ए न्यू डे, देन आई ओपन माय आईज, देन आई टॉस माय बॉडी टू लेफ्ट राइट। पता है पता है पता है पता है, सब पता है हमको। मम्मी की लाडली। बेटा बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, उसके साथ साथ बोला भी करो। जैसे मैंने कहा अब तक 6 सेंटेंस में करवा दिया। शुभम 6 के 6 सारे सारे के साथ तुम्हारे फ्लो में निकलना है। जब इसको वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेजना है, ठीक है। दो दो होमवर्क दे रहा हूँ, एक दिन छुट्टी रहेगा तुम्हारे लिए। और दो दो होमवर्क, पहला होमवर्क क्या है बेटा, इसको वॉइस रिकॉर्ड करके दोस्त तक भेजना है। उसके बाद इसको इसी फॉर्मेट में बदलना है तुम्हें। बोलना आना चाहिए, जब बोलना आ गया तब जाकर लिख के भेजना मुझे। बहुत अच्छा, तुमने बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स करो। जो 5-6 भी रेस्पॉन्स करो, दैट्स वेरी नाइस, और आई अप्रिशिएट यू। आई हैट्स अप टू यू, हैट्स अप टू यू दोज हु रेस्पोंडेड माय होमवर्क्स इन ग्रुप्स। और जो नहीं कर रहे बेटा समझ लेना, यू आर कटिंग योर ओन थ्रोट, तुम खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। ओके, अगर आज तुम इसको मजाक से अगर जो जो करवा रहा हूं मैं तुमको, वो सारी बच्चों का चीज है कि नहीं। बेटा हंस के मत उड़ाओ, डोंट मेक इट लाफ, डोंट लाफ इट ऑफ, है कि नहीं। बोला था ना किसी भी चीज को हम हंस के उड़ा देना, डोंट लाफ इट ऑफ। अगर आज तुम वही चीजों को अगर तुम हंस के उड़ा दोगे तो एक दिन, आज तुम उसको हंस के उड़ा रहे हो, ठीक है, बाद में आगे चल के पीपुल इज रिडिकुल, लोग तुम्हें मजाक उड़ाएंगे तुम्हें, ठीक है नहीं। रिडिक्यूल मजाक उड़ाना होता है, ठीक है। चलो, आई होप सबने थोड़ा थोड़ा लिखा है। यस, अच्छी बात। ठीक है, क्या सब बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, कहाँ गए सब। चलो टाइप करने में अगर दिक्कत हो रहा है तो आई होप तुम उसको बोल ही रहे हो, क्योंकि लंबा हो जाएगा 6 सेंटेंस। चलो आगे आ जाओ यहाँ पे।
उसके बाद मैंने 7 नंबर पे सेंटेंस लिखा है कि कीप द ब्लैंकेट इज साइड। तुम यहाँ पे ब्लैंकेट, जब गर्मी के टाइम पे थोड़ी कोई ब्लैंकेट ओढ़ता है, तो कोई शीट ओढ़ते हो, चादर, शीट, बेड शीट, है कि नहीं। अगर एसी वेसी चल रहा है, अब इसमें भी तो ब्लैंकेट की जरूरत होता है, ठंड में तो ब्लैंकेट चाहिए, कंबल अगर ओढ़ के सो रहे हो, लेकिन मैं तो सोता हूँ आज भी, क्योंकि काफी ठंड लगता है। कब कब एट द टाइम ऑफ रात के 3 3 एम टाइम पे, चारों तरफ मेरा सब इधर से बालकनी का दरवाजा खुला होता है, खिड़की विड़की सब खुला होता है, सब खोल के सो जाता हूँ। मतलब बाहर सब लग होता है, लेकिन अंदर की बात करता हूँ। और काफी रात को ठंड लगता है, फैन वैन चलता है। लेकिन अगर तुम जो ओढ़े हो, लेकिन उसको तुम उसके हिसाब से यहाँ पे लगाना है। अगर नहीं ओढ़े हो तो इसको लगाना ही नहीं है। ಹಾ ನಾನು ನಿದ್ದೋಗುವೆನಿ ಆವು आज मेरा ब्लैंकेट ना निद्दो। चलो अच्छी बात है। चलो, हाँ हाँ, बारिश के दिन में भी, पर रात को ठंड लगता है। और जो फैन होता है ना, टेबल फैन है, फैन तो 3 4 हैं रूम में। एक टेबल फैन मैं लगा देता हूँ बालकनी में, वो वहां से ठंडी हवा खींच के रूम में भेजता है। ठीक, तो मतलब जुगाड़ू एसी टाइप का, देसी जुगाड़ू एसी ऐसे। चलो आ जाओ, कम टू द पॉइंट और लेट्स स्टार्ट अगेन। तो हमने कहा कि सर कीप द ब्लैंकेट इन साइड। जैसे मान लो हमने कहा कि देखो कोई भी चीज को दूर करना अपने से, लेकिन इसको हम क्या कह सकते थे, इसको अलग सेंटेंस में बोल सकते हैं, लेकिन ये सबसे इजी है, कीप द ब्लैंकेट इन साइड। कोई भी चीज को अगर कीप द साइड कर रहे हैं, कोई भी, तो उसको हम अलग कर रहे हैं आपसे, कोई उसको दूर कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कीप ए साइड। उसके बीच बीच में लगा दो कीप द ब्लैंकेट ए साइड, कीप द शीट ए साइड। ओके। हाँ, सिचुएशन कहा था ना, नेसेसिटी इज नॉट द मदर ऑफ इन्वेंशन बट द सिचुएशन। एक बार क्या हुआ था, रात को करंट चला गया था, इस गर्मी के दिन में ही था। भाई करंट नहीं तो सो नहीं पाया उस रात, तब जाके मैंने सोचा कि क्या करूं, अगर रूम ठंडा होता तो मैं आराम से, मुझे नींद आ जाता। तो फिर मैंने कहा चलो इसको एसी लगाता हूँ। तो यहाँ आ जाओ, तो मैंने कहा उसके बाद कीप द ब्लैंकेट एसाइड। तो यहाँ पे देखो 7 नंबर में क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, आई कीप, है कि नहीं, आई लगा दो कि उसके बाद मैं आई गेट अप एट 5 o'clock, देन आई fold my hands, then I smile a bit, then I thank God for a new day, then I open my eyes, then I toss my body to left, then I keep the blanket aside। यही तक है, देन आई कीप द ब्लैंकेट aside। उसके बाद मैंने ब्लैंकेट को खुद से दूर किया, खुद चला रहे जो घुड़ी तरह से डगो, तो किसे कौन से डगो, हाँ, जा पूछो पूछो। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। जो तुमने ओढ़ा था उसको निकाला, है कि नहीं, उसको अलग किया आपने। देन आई कीप द ब्लैंकेट एसाइड। इसको भी बेटा तुम आराम से लग सकते, कीप का केप होता है B3 में, अगर जा रही है तो कीपिंग। अगर जैसे मैं अलग कर रहा हूँ खुद से, उस टाइम पे मैं क्या करूंगा, आई एम कीपिंग द ब्लैंकेट एसाइड, है कि नहीं। अगर आई के साथ तो आई, यू के साथ ही के साथ, इज के साथ ही इज कीपिंग। वहीं पे इसको हम लगाएंगे थर्ड के साथ, ही हैज केप्ट द ब्लैंकेट एसाइड, उसने ब्लैंकेट को अलग कर दिया खुद से। सवाल करो, हैज ही केप्ट द ब्लैंकेट एसाइड, उसने नहीं किया, ही हैज नॉट केप्ट द ब्लैंकेट एसाइड, है कि नहीं। अगर वही जगह तुम किसी को पूछोगे हैव यू केप्ट द ब्लैंकेट एसाइड, उसने कहा यस आई हैव केप्ट द ब्लैंकेट एसाइड बट शी हैज नॉट केप्ट द ब्लैंकेट एसाइड। फ्लो में निकलना चाहिए बेटा, अगर फ्लो में नहीं निकला तो भाई, ठीक है। हाँ हाँ, चद्दर, चद्दर ही बेटा शीट होता है। चद्दर को भी हम शीट कह सकते हैं, शीट। अगर वो बेड, कभी कभी बेडशीट भी ओढ़ ओढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम वहां बेडशीट भी लगा सकते हो। भाई जो है हमारे पास, कोई साड़ी भी ओढ़ के सो जाता है कभी कभार, कॉटन का साड़ी होता है मम्मी का, अगर कुछ ना मिले, है कि नहीं। कभी कभार तो इतना ठंड होता है, जैसे मान लो कंबल नहीं है तुम्हारे पास, तो कभी कभार तो मैं उस बेडशीट को ही उठा के उसके नीचे घुस जाता हूँ। अब कुछ नहीं मिल रहा है अंधेरे में तो क्या करूं, जो बेडशीट है उसी को थोड़ा उठा दो और अंदर घुस जाओ, ले हो गया, देसी जुगाड़, देसी कंबल। चल लुंगी। लुंगी भी घुड़ी की सुई है वो, जो लंबा बना टिके बड़ साइज रो थिबो, गामुचा घुड़ी की सुई है।
ओके, बदमाश है छोटा सा। देखो आईडी, कीप द ब्लैंकेट एट साइड। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर मैं बेड से उतरूंगा नीचे, है कि नहीं। तो जैसे मैं बेड से उतरूंगा नीचे, तो उसके लिए हम क्या करें, पहले अपने टांग को लटकाओगे, है कि नहीं, या ऐसे ही पहले बस ऐसे होता है बेटा, ध्यान से था ना इसको सोचना। सुबह जब उठते हैं तो थोड़ा एनर्जी कम होता है, एनर्जी लेवल कम होता है, तो थोड़ा पहले कुछ देर ऐसे बैठ गए, बेड से पैर नीचे लटका के, है कि नहीं। तो उसका हम क्या कहते हैं, देन आई हैंग माई लेग्स डाउनवर्ड्स। देन बोलो मेरे साथ, देन आई हैंग माई लेग्स डाउनवर्ड्स। बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, बोलो मेरे साथ साथ। और क्या रूपा, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। देन आई हैंग माई लुंगी, नहीं सॉरी, देन आई हैंग माई लेग्स डाउनवर्ड्स। देन आई हैंग माई लेग्स डाउनवर्ड्स, है कि नहीं। मैंने कहा आई गेट अप एट 5 o'clock, देन आई फोल्ड माई हैंड्स, देन आई स्माइल अ बिट, देन आई थैंक गॉड फॉर ए न्यू डे, देन आई ओपन माई आईज, देन आई टॉस माई बॉडी टू लेफ्ट, देन आई कीप द ब्लैंकेट एट साइड, एंड देन आई हैंग माई लेग डाउनवर्ड्स। उसके बाद मैंने अपना लटकाया पैर बेड से नीचे। यस, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसने सब लिख दी। देन आई कीप द ब्लैंकेट और बेड साइड, बेड शीट एट साइड, देन आई हैंग माई लेग्स डाउनवर्ड। ओके, डाउनवर्ड बेटा एक वर्ड होता है, ठीक है, उसको अलग मत लिखना। मैंने अलग लिखा है, मुझे अलग दिख गया मैंने। चलो, देन आई सर्च फॉर माई स्लीपर्स, यस, देन आई वेयर माई स्लीपर्स। देखो, अच्छी बात है, सब लिख दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा वहां पे गलती है, वो गलती आ गई, समझा दे रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे हमने कहा सर हैंग, कहाँ गया हैंग, ये वाला हैंग, हैंग, हैंग। देखो ये जो होता है बेटा, हैंग दो तरह का होता है, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा, सब ध्यान दो, यहाँ पे सब ध्यान में देखो थोड़ा। हैंग जब हम कहते हैं, हैंग का दो फॉर्म होता है, तो दो तरह का होता है, देखो यहाँ पे ध्यान से। एक होता है हैंग, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने V1 दोनों का हैंग होता है, ये भी हैंग होता है, ये भी हैंग होता है। उसके बाद ये एक हो जाता है V2 होता है हैंग्ड। उसके बाद ये हो गया हैंग्ड, V2 भी हैंग्ड, V3 भी हैंग होता है। और एक हैंग का V2 होता है हंग, यू लगता है यहाँ पे, ठीक है, हैंग हंग, अबे लग जाना यू, हाँ, हंग, दिख नहीं रहा होगा, HUNG, हंग। और V3 भी हंग होता है। दो तरह का अगर तुम देखोगे, ठीक है, दो तरह का इस्तेमाल तुम हैंग का देखे होगे, और तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूज हुआ होगा सर यहाँ पे क्या है, इसका मतलब मीनिंग भी अलग होता है। इस हैंग का मतलब होता है किसी को फांसी देना। क्या देना, फांसी, फांसी जिसको हम कहते हैं फांसी। इसका मतलब होता है लटकाना, लटकाना, लटकना, है कि नहीं। जैसे समझ रहे हो नहीं समझ रहे, जैसे मैंने कहा कि मैं अपने शर्ट को खूंटी पे, है कि नहीं, टांग दिया, इसको टांगना मतलब कहते हैं इसको, जैसे टांगना, लटकाना, है कि नहीं। मैंने कहा कि मैं अपना शर्ट को वहां पे टांग दिए, तो उसको क्या लगाऊंगा, ये वाला हैंग लगाऊंगा, मतलब मैंने कर दिया है, तो मैंने कहा देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, आई हैव डैश माई शर्ट, ठीक है। तो मैंने अपने शर्ट को टांग दिया, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैव के बाद V3 आता है, हंग लगेगा या हैंग लगेगा, जल्दी कमेंट करो। इसके बाद क्या लगेगा, मैंने कहा कि मैंने अपने शर्ट को टांग दी है, जल्दी जल्दी कमेंट करना चाहिए, जल्दी। यस, हंग हंग, यस बेटा यही लगेगा, टांगने वाला बताया था ना, ये लटकाना, ये होता है। अगर वहीं पे तुम यहाँ पे हैंग लगा दोगे, तो क्या तुम अपने शर्ट को फांसी दे रहे हो। फांसी दे रहे हो अपने शर्ट को, नहीं फांसी नहीं दे रहे हो। वहीं पे अगर हम बात करें कि भगत सिंह वाज, ये वाला हंग लगेगा या ये वाला हैंग लगेगा, बताओ। भगत सिंह की जब हम बात करेंगे, भगत सिंह वाज, ये वाला हैंग लगेगा, ये वाला हंग लगेगा। भगत सिंह वाज हंग्ड होगा, सॉरी, भगत सिंह वाज हैंग्ड होगा या हंग होगा।
भगत सिंह वाज हैंग होगा कि हंग होगा? यस, हैंग्ड। इनको फांसी दी गई थी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ओके। कैशियम, मिस्टर कैशियम, कॉमेंट वॉमेंट कर लिया करो। चुपचाप मतलब क्या कर रहे हो, पता नहीं कहाँ थे हम। हाँ, ये वाला खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या बताओगे? हैंग माई लेग्स डाउनवर्ड। जब मतलब ये मैं समझा रहा हूँ कि जब तुम क्या करोगे, इसको रीड करोगे कि काम खत्म हो गया है, तो क्या करो? आई हैव, तो हंग हो जाएगा, हैंग का हंग हो जाएगा, यू लगेगा। आई हैव हंग माई लेग्स डाउनवर्ड। हैंग मत करना, लेकिन अपने पैर कोई फांसी में चढ़ा दो। मतलब गला फांसी में चढ़ता, मेरा पैर चढ़ गया बात। ठीक है, उसके बाद आया 9 नंबर कि आई सर्च फॉर स्लीपर। उसके बाद मैंने जूता चप्पल ढूंढा। देखो बेटा, यहाँ पे भी एक चीज आ जाता है बेटा, छोटी छोटी चीज, ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें जिंदगी की में बहुत ही जरूरत होता है, इसमें बहुत ज्यादा गलत करते हैं लोग। ओके, बहुत ही छोटी चीज है। देखो कौन सा छोटी चीज है, ध्यान दो यहाँ पे। क्या छोटी चीज है? हमने कहा कि आई, ये वाला आई, उसके बाद क्या करोगे तुम? आई सर्च फॉर स्लीपर्स, है कि नहीं? आई सर्च फॉर स्लीपर्स। तो सर्च फॉर का मतलब होता है ढूंढना। सर्च फॉर का मतलब होता है ढूंढना। ध्यान दो बात को। चलो इसको मैं मिटा दो, फिर से इसको थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ। सर्च और सर्च फॉर में क्या होता है अंतर? यहाँ देखो, एक है यहाँ पे सर्च, सर्च फॉर। जैसे मान लो मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या ढूंढ रहा हूँ? मान लो मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सर्च फॉर ए जॉब कह सकता हूँ। चप्पल ढूंढ रहा हूँ तो स्लीपर कह सकता हूँ। मान लो मैं लड़की ढूंढ रही हूँ, ढूंढ रहा हूँ शादी के लिए, तो वहां पे मैं कह सकता हूँ सर्च फॉर ए ब्राइड, है कि नहीं? कुछ भी ढूंढना है तो सर्च फॉर लगा के ढूंढना। समझ रहे हो कि नहीं समझना? अगर कुछ भी ढूंढ रहे हो तो जो ढूंढना है ढूंढो, लेकिन सर्च फॉर के साथ ढूंढो। अकेला ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा तुम्हें, चाहे वो लड़की हो या चप्पल। मतलब मैं समझाना चाहता हूँ कि सर्च फॉर का मतलब है ढूंढना। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि सर्च, अगर देखो मैंने कहा कि आई एम, अगर ये जारी है तो मैं ये जॉब ढूंढने की काम मेरा जारी है, या फिर लड़की ढूंढने की काम जारी है, तो मैं कह सकता हूँ सर आई एम सर्चिंग फॉर ए जॉब, आई एम सर्चिंग फॉर ए गर्ल, आई एम सर्चिंग फॉर ए न्यू हाउस, ठीक है नहीं? कोई भी, आई एम सर्चिंग फॉर ए न्यू फ्लैट, आई एम सर्चिंग फॉर ए कुछ भी तुम ढूंढ रहे हो, तो वहां पे तुम क्या लगाओगे? यहाँ पर अगर ढूंढ रहे हो जा रही है तो सर सर्चिंग, आईएनजी लग जाएगा, यहाँ पे सर्चिंग हो जाएगा। और जैसे खत्म हो गया तो यहीं पे ईडी लग जाएगा, सर्च हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम बात करते हैं बेटा, अगर सिर्फ अगर मैं बोलूं कि आई एम, देखो यही वाला है इसको, जैसे मान लो बताया कि मैंने कहा आई एम सर्चिंग फॉर ए ब्राइड, है कि नहीं? मैं एक लड़की ढूंढ रही हूँ शादी के लिए। आई एम, यहीं पे अगर मैं बोल दूं कि आई एम सर्चिंग ए ब्राइड, इसका मतलब क्या निकलेगा पता है? देखो दो सेंटेंसेस यहाँ पे मैंने लिखा, बड़ा गजब का अंग्रेजी है यार। आई एम सर्चिंग फॉर, यहाँ पे फॉर लगाया, आई एम सर्चिंग फॉर ए ब्राइड, तो इसका मतलब मैं एक लड़की ढूंढ रहा हूँ शादी के लिए। अगर वहीं मैं बोल दूं आई एम सर्चिंग ए ब्राइड, तो इसका मतलब होता है तलाशी लेना। मैं एक लड़की की तलाश ले रही हूँ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये सिर्फ अगर कहीं पे तुम्हें सिर्फ सर्च दिखे तो उसका मतलब होता है, सर्च का मतलब होता है तलाश लेना। वही जो कहते हैं ना, पुलिस आके कहते हैं कि सर्च, सर्च वारंट, है कि नहीं? मतलब तलाशी लेने का वारंट जो लेके आते हैं, ऑर्डर ऑर्डर जो लेते हैं, उसको हम कहते हैं सर्च। लेकिन जब हम बात करते हैं ढूंढना, तो लगाना सर्च फॉर ढूंढना। तलाश ले तो शादी करेगा कि और क्या करेगा? तलाश लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? सर्च में और सर्च फॉर में अंतर क्या है? आई एम सर्चिंग फॉर ए ब्राइड, हाँ, तुमको शादी के लिए चाहिए। तुम लिखो सर आई एम सर्चिंग फॉर ए ग्रूम, हमको एक लड़का चाहिए। और ଆପଣଙ୍କ तरफ लिखिଥିଲି। अच्छा, वो लो कितना चिंता करते हो मेरे लिए।
जार बाग और तार नहीं, यू आर नॉट सर्चिंग फॉर ए ब्राइड। अच्छी बात। वो कहता है ना कि जार बाहा तार मनो नहीं, साही पोलिसर निद होनी। समझ में आया ना, सर्च और सर्च फॉर में क्या अंतर होता है। बड़ी छोटी छोटी चीज अगर गलत कर दोगे ना तो उसका मतलब अलग हो जाता है। बड़ी भयानक भयानक चीज है अंग्रेजी में। जैसे यहाँ पे कहा तुम अपने पैर को लटकाओगे ना कि फांसी दोगे, इस तरह से तुम यहाँ पे ढूंढ रहे हो चप्पल, या चप्पल की तलाश थोड़ी लोगे तुम। अगर तुम सिर्फ ये कह दोगे देन आई सर्च स्लीपर्स, देन आई सर्च माई स्लीपर्स, तलाश ले जाएगा हो जाएगा, मैं ढूंढ रहा है। और वहीं पे अगर हम आस्क लिखें, आस्क और आस्क फॉर, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है आस्क फॉर। अभी मैंने यहाँ पे लिख दी आस्क फॉर, ASK। इसको यहाँ में बढ़ा करके भी लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान दो। आस्क, आस्क का मतलब होता है पूछना। कोई भी चीज अगर तुम मुझे पूछ रहे हो, ठीक है, यू आर आस्किंग मी। कोई भी चीज अगर तुम मुझे पूछ रहे हो तो यू आर आस्किंग मी। पूछना होता है, मतलब कोई भी चीज पूछना, जानने के लिए कोई पूछ रहे हो तुम। यू आर आस्किंग ए ड्राइवर, यू आर आस्किंग ए, you're asking your mom that particular about particular thing, about particular thing, why that particular thing is मुझे नहीं मिल रहा है, आई एम नॉट फॉर। तुम क्या होगा कि सर आई एम मम्मी आई एम सर्चिंग दैट पर्टिकुलर थिंग माय स्कूल बैग। ओके, तो वहां पे तुम उसको पूछोगे, देन आई आस्क माय मम्मी। तो वहां पे आस्क मतलब पूछना, लेकिन जब भी हम लगाते हैं आस्क फॉर, इसका मतलब होता है मांगना। इसका मतलब होता है मांगना, मांगना, मांगना। मांगोगे जिसको हम कहते हैं, जैसे कल कल मैंने बताया था कि आई हैव, आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स हैव, क्या बोल रहे हो आप, यू आर नॉट सर्चिंग राइट, हे नियन तो ब्राइट चप, खिलौना दे रहा है। लेकिन जो जैसे बचपन में मम्मी कहती है ना कि मेला बेटे तो चांद जैसी बहू लाएगी, इस तरह से। चलो यहाँ जाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं। आस्क का मतलब होता है पूछना, लेकिन वही वजह मैं कहूंगा आस्क फॉर। जैसे मान लो मैंने कहा यू आर आस्किंग फॉर माई हेल्प, तो मुझे मदद मांग रहे हो। इसका मतलब ये नहीं तुम मदद पूछ रहे हो मुझे। आस्किंग फॉर मतलब मांगना। कहते हैं ना स्मार्ट पर्सन आर ऑलवेज, स्मार्ट पर्सन आर दोज हु आस्क फॉर हेल्प। वो मदद मांग लेते हैं, वो हिचकिचाते नहीं है, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं आस्क फॉर का मतलब क्या होता है मांगना। तो या तो तुम ढूंढ सकते हो, कह सकते हो आई सर्च फॉर स्लीपर्स, या फिर कोई अगर नवाबजादे हो, है कि नहीं, माँ का लाडला माँ की लाडली पापा की परी, ऐसा कुछ हो, है कि नहीं, पापा की परी, तो तुम डायरेक्टली कह सकते हो कि ए मेरा चप्पल लाओ रे, है कि नहीं, देन आई आस्क फॉर माई स्लीपर्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये तुम्हारे हिसाब से लगा रहे हो। अगर कोई होगा तुम्हारे अंदर पापा की परी, है कि नहीं, माई मॉम इज माई ATM, माई नहीं, माई डैड इज माई ATM, माई मॉम इज माई, क्या क्या पता नहीं लिखते रहते हैं लड़कियां सब फेसबुक में। 125 रुपए का डाटा डालेंगे पैक में और भाव दिखाएंगे 1.5 लाख का। बेटा सबको समझ में आ रहा है, मैंने कहा। उसके बाद तुम कहोगे आई सर्च फॉर स्लीपर्स, आई सर्च फॉर माई स्लीपर्स, या आई आस्क फॉर द स्लीपर्स। उसके बाद तुम उसको पेन हो गया, आई पुट ऑन एंड वेयर। पुट ऑन और वेयर में भी अंतर है बेटा। अच्छा, मम्मी पापा की नन्ही परी, ससुरा, दिमाग सटिया जाता है हमारा। हाँ ऐसे लिखते हैं सब। और किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा रेस्पॉन्स कर लो। क्या सब खो गए झूले में, टूट जाएगा सबका झूला अगर कमेंट नहीं करोगे तो। सबका जब झूला झूलोगे तो याद रखना मेरा श्राप, अगर रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो तो टूटेगा झूला तुम्हारा। और इतना गिरोगे पीछे, मतलब तुम्हारा तो दर्द लग जाएगा। तो लड़के नहीं झूलते। तो लड़के अगर नहीं झूलते तो लड़के रेस्पॉन्स क्यों दे रहे हैं? तो मतलब मन में हो रहा होगा, थोड़ा हुआ सारा होगा, काश हम भी थोड़ा झूल लें किसी के साथ, है। चलो झूला वाला मैं काफी फानी वीडियोस भेज दूंगा इस ग्रुप में, देखना। तो यहाँ जाओ, उसके बाद मैंने पुट ऑन, देन आई पुट ऑन माई स्लीपर्स, ठीक है, देन आई पुट ऑन द स्लीपर्स, देन आई पुट ऑन माई स्लीपर्स, जो कहना है वो यहाँ पे एस मिट चुका है, उसको फिर से लिख देता हूँ। देन आई पुट ऑन। देखो पुट ऑन और वेयर में एक बहुत ही अंतर होता है, इसको ध्यान से समझना। जैसे मैंने कहा कि मैं
कुछ नहीं पहना हूं, मतलब मैं नहा के आया, ठीक है, यहाँ पे मैंने शर्ट टी शर्ट कुछ नहीं पहना है, तो उसके बाद अगर जैसे मान लो मैं शर्ट पहन रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे मेरी बात, उसके बाद जैसे मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं अपने मतलब बॉडी में नहीं है, ऊपर मेरा शर्ट नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, शर्ट लाया, उसको मैं यहाँ पे जैसे मैंने शर्ट मेरा थला था या फिर मेरी वाइफ मान लो वहाँ पे इस्त्री करके रखी है, तो मैंने शर्ट लिया और उसको पहनने लगा। जैसे ये जो पहन रहा हूँ, ध्यान दो मेरी बात को, जैसे ही मैं पहन रहा हूं तो उस टाइम पे तुम क्या मतलब वो जो पहनने की काम अगर जारी है, समझना ध्यान से, जिस जिस टाइम पे मेरा पहनने का काम जारी है या फिर जैसे मैंने बटन बटन लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब यू आर पुटिंग ऑन, तुम क्या करो, पुट ऑन मतलब होता है बेटा पहनना, उस टाइम पे तुम पहन रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ध्यान दो मेरे बात को, तुम्हारे मतलब जैसे मान लो क्या हो, तुम उठे, सुबह उठे, तो तुम क्या रात को पहन के सोए थे? नहीं सोए थे पहन के, है कि नहीं? तो इसलिए मतलब नंगे पर पैर सोए थे, सभी सोते, चप्पल पहन के कौन सोता है? कोई होगा अगर पापा की बड़ी सोता होगा, है कि नहीं, हील वील लगा के। तो अगर मान लो कोई पहन के सो, मतलब बिना भाई नंगे पैर सब सोते हैं। तो जैसे ही वहां से निकलोगे तो इतना वो तक तो पहली बार पहन रहे हो ना, तो वहां पे कह सकते हो देना ही पूछन दे, उसके बाद मैंने पहना, है कि नहीं? मतलब जब मैं पहन रहा हूँ उस टाइम पे उस वाला एक्शन, कुछ नहीं हो पहन रहा हूं तो उसका हम पुट ऑन करते हैं। पहनने के बाद अगर तुम्हें कोई सवाल पूछेगा कि तुमने क्या पहना है, समझो मेरी बात को, जब पहली बार पहन रहे हो तो उसको पुट ऑन लगाना है, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे मैंने कहा मैं बाथरूम से निकला, शर्ट देखा, मतलब शर्ट देखा मतलब शर्ट लाया और उसको पहन रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई एम पुटिंग ऑन माई शर्ट, मैं अपने शर्ट पहन रहा हूँ। वहीं पे अगर मैं कहूँ उसको पहनने के बाद मैं चला गया और किसी ने पूछा कि तुम क्या पहन के आ रहे हो, ठीक है ना, जैसे मान लो मैं जा रहा हूँ किसी को मिलने और वो पूछ रहे कि बेबी बोलो ना कौन से कलर का शर्ट पहन के आ रहा हो, तो मैं कह रहा हूँ, तो उस टाइम पे मैं कहूंगा कि आई हैव ओयर्ड, लेकिन यहाँ पे वायर का वायर लगता है, या फिर कह सकता हूँ कि तुम कौन कौन से शर्ट पहन रहे हो, जैसे मैंने पहन रहा हूँ और फोन कर रहा है, मेरी कोई होगी, अगर मान लो उसने फोन कर दी कि जानू बोलो ना कि कौन सी कलर की शर्ट पहन रहे हो, तो मैं कहूंगा कि आई एम पुटिंग ऑन माई, अगर पहन रहा हूं उस टाइम पे कुछ नहीं था तो मैं कहूंगा आई एम पुटिंग, लेकिन पहनने के बाद अगर कोई पूछा कि तुमने क्या पहना, तो मैं कहूंगा आई वेयर दैट ब्लैक शर्ट। खत्म होने के बाद बॉडी में कुछ नहीं है तो हम पुट ऑन कर रहा हूँ, पहन लिया, उसके बाद अगर मैं उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि आई वेयर ए टी शर्ट, मैं पहन चुका हूँ, या फिर आई हैव, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लड़कियां झूलते हैं और लड़के चिकन मटन का पार्टी करते हैं, हाँ। आज तो अब हमारा होगा जबरदस्त पार्टी में गाजा ले। बस आज एक दिन हमारा जो बूढ़ा वो टपक गया था ना, वो चला गया था ऊपर, उसका आज 10वां है, 10 क्या कहते हैं उसको, 10वां दिन है आज, बस कैसे के थोड़ा बहुत करके काट लेंगे, उसके बाद कल से तो पार्टी ही पार्टी। हाँ, ट्यूजडे ट्यूजडे के मन, क्या बट बेकार बेकार से बातें नहीं, क्या पूटन और वायर में समझ में आया, तो इसका मतलब तुम पहली बार पहन रहे हो तो नंगे पा रहे हो, तो वहां पे क्या लगाओगे, देना पूटन में स्लीपर्स, वायर नहीं लगाओगे, ठीक है? ओके, उसके बाद क्या लगाओगे, पूटन लगाओ, क्योंकि भाई रात भर तुम नंगे पैर सोए थे तो उठ के पहली बार पहन रहे हो, तो उसको तुम कहोगे देना पूटन, पहला पहना, उसका पहन के जा रहे हो और कोई पूछे कि क्या पहन के ऐसे जा रहे हो, आवाज आ रहा है, तुम कहोगे आई वेयर माई स्लीपर्स, पहन के जा रहे हो मतलब तुम्हारे साथ है वो कुछ टाइम के लिए, उसके बाद तुम कह सकते हो यस आई वेयर, उसके बाद मान लो तुम्हारे तुम बाहर जा रहे हो तो मम्मी ने पूछा कि बेटा चप्पल पहन रहा है, पहन के जा रहा है कि नहीं, तुम कहोगे यस आई वेयर माई स्लीपर्स। ओके, आई होप सबको समझ में आएगा आज का क्लास, और ये 10 मैंने बता दिया तुम्हें, 10 का 10 सेंटेंसेस। होमवर्क तुम्हें याद है कि नहीं है, सबको क्या करना है, वॉइस करना है, वॉइस बोलना है एक साथ विदाउट मतलब हेजिटेटिंग, और उसको बहुत ज्यादा उसको इस तरह से इस फॉर्मेट में, जैसे मैंने कहा ईज ईज के साथ सबके साथ इसे डू वगैरह वगैरह लगा के, डू डज हैज सबके साथ लगा के इसको बोलना भी है, पहले बोलना है उसके बाद तुम्हें यहाँ पे इसको लिख के भेजना है। ओके, यस, बहुत अच्छा दीपित, आई वेक अप एट 5 o'clock, then I follow my hands, then I smile a bit, then I thank God, then I toss my body to left, then I keep the blanket aside, then I hang my legs downwards, then I search for my slippers, then I put on my slippers। बहुत अच्छा, जबरदस्त। यस, ये फ्लो में निकलना चाहिए। ओके, क्या कोई क्वेरी है, डाउट है बेटा आज के क्लास में, पूछो थोड़ा, अगर इफ यू वांट टू आस्क।
Is there any doubt? If not, then I will end the class. Okay, बहुत अच्छा बेटा. Okay, सबको अपना होमवर्क याद है? एंड जैसे पहले आज तक होमवर्क करते हैं बेटा, 3 महीने तक इस तरह से होमवर्क मेरे साथ साथ रहना. तो और हर पहला क्लास से लास्ट क्लास तक पूरा का पूरा लिंक रहेगा, कहीं पे बीच में चेन उस कड़ी टूटने नहीं दूंगा. ठीक. ओके, इसके बाद इस सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे. आज 10 कर दिया, फिर कल 20, या फिर कभी कभी तो ज्यादा टाइम पड़ेंगे तो 30 भी करवा दूंगा. 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा सब चीजें. फिर आगे और चीजें, नई नई चीजें जानेंगे. ओके, अच्छा चलो. ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. जय हिंद टू ऑल एंड विश यू ए हैप्पी रोजो. एंड जो मैंने बताया था कि झूला वाला टूटेगा, वो आई हैव टेकन बैक माय वर्ड्स. आई हैव टेकन बैक माय श्राप. And enjoy the rojo, enjoy the swings. Okay, my blessings, my well wishes are always with you, and even the blessings of God is also with you. So bye.